Hey, good evening, everyone, and just ignore big background sound. Not background, it is background sound. And actually, yesterday we are able to solve this weekly contest 385's three questions, and let us go and try to solve like previous contest like 385 की पीछे वाली, and we are on 14th page 385. तो अच्छा पेज स्विच आ गया है. Now we have to give this bi-weekly contest 124. Let us give it a chance. Okay, so contest is started. Maximum number of operations with the same score one. Okay, you are given an array of integer nums. Consider the following operation. Read the first two elements nums. Read the first two elements nums and define the score of operation as the sum of these two elements. Okay. You can perform this operation until num contains fewer than two elements. Additionally, the same score must be achieved in all operations. That is the maximum number of operations you can perform. Same score, you can perform the operation. Basically, we want is first two elements only. 6, 6. Okay, so we only want first two elements. Okay, so first two, skip. First two and skip, and that's it. Int n equals to nums for size and int sum equals to तो उससे तो ऊपर ही होगा ना तो उससे ऊपर है nums का 0 प्लस nums का 1 तो ये दोनों तो प्लस कर दिए और अभी int c and t will be equals to 1 अभी for int I equals to चलो करेंगे 2 से I स्मॉलर है ना I प्लस इक्वल्स टू 2 करूंगा मैं सीधे ही ओके सो अब I प्लस 1 करूंगा ना मैं हर बार तो I प्लस I शुड बी स्मॉलर देन और इक्वल टू I प्लस 1 ठीक है अभी क्या करना है if if nums का I plus nums का I plus 1 if it is equals to sum cnt plus plus else break कर देंगे and return I guess that's it दो आया इसका भी और इसका एक आना चाहिए and that's good एक्सेप्ट हो गया है पहला वाला solution that's good apply operation to make string empty you are given a string s consider performing the following operation until s become empty जब तक s empty बनती है तब तक कर दे for every alphabet character from a to z remove the first occurrence of the character in s if it exists for example let initially a b c b b c a is a string given to us we do the following operation remove the underline characters A, B, C. The resulting string will be ABC. Okay. Remove again ABC and the resulting BA. Remove the underlying character BA. Return the value. Return the value of a string S right before applying last operation. So BA should be the answer. For every alphabet character from A to Z, remove the first occurrence of that character in S. So basically जब तू लास्ट तक जाएगा तो उसके अंदर
क्या मतलब जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वही बचेगा ना भाई। देखो ये है, इसमें ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 है। बी की फ्रीक्वेंसी भी 3 है। कुछ लोगों ने ए उड़ा दिया, बी उड़ा दिया, सी उड़ा दिया, खुश है तुम। फिर तुमने ए उड़ा दिया, बी उड़ा दिया, बी उड़ा दिया और सी उड़ा दिया। दोनों सी गए, दोनों बी गए, अब बचा क्या है? फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ एवरी कैरेक्टर उड़ाना है ना, फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ एवरी कैरेक्टर। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे कि विच कैरेक्टर है और एनी कैरेक्टर हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, अगर जिसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है तो बेसिकली क्या करेंगे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एक की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, एक बार आया, दो बार आया। जब भी वो तीसरी बार आ रहा होगा इसका मतलब वो बच रहा होगा, तो वो तीसरी बार वाले में अपन क्या करेंगे, उसको अपने स्ट्रिंग के आंसर में ऐड कर देंगे। जैसे कि देखो, लेट मी गिव यू ड्राई रन फॉर दिस लॉजिक। लॉजिक इज बेसिकली फर्स्ट ऑकरेंस सर्वडेड होगा, जैसे ए बी सी डी बी सी ए, नाइस। ना ए की फ्रीक्वेंसी है 3, बी की फ्रीक्वेंसी है 3 एंड सी की फ्रीक्वेंसी है सपोज करो 2। फिर मैं जाऊंगा ए के पास। अगर अभी के लिए ए की फ्रीक्वेंसी 1 होती तो मैं इस ए को आंसर में ऐड करता, पर अभी के लिए 3 है। 3 है तो आई कैन स्किप दिस एंड दिस फ्रीक्वेंसी नाउ विल बी 2। आगे नहीं आया, दिस फ्रीक्वेंसी नाउ विल बी 1, तो ये भी चला गया। नाउ तेरे पास आया बी, दिस फ्रीक्वेंसी विल बी 2। अगेन सी आया, दिस फ्रीक्वेंसी विल बी 1। नाउ आया बी। पर दिक्कत ये है कि मेरे को बस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला ही, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के साथ ही गेम करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले ही बचेंगे, वो छोड़कर कोई बचना है नहीं वैसे भी। हम्म। सी की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम नहीं है तो स्किप कर दे, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है उसी के साथ गेम हो सकता है। टन, 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 टन। एक बार आया, दो बार आया, एक बार आया, एक बार आया, एक बार आया, दो बार आया, 3 बार आया। 3 बार तो ये ऐड कर दूंगा आंसर में, 3 बार आया, 2 बार आया, ये ऐड करने की जरूरत नहीं है, और ये आया एक बार। एक बार तो इसको मैं, ये 3 बार तो इसको भी आंसर ठीक है। तो आई विल कीप टू लुक लाइक, लेट मी राइट द कोड फर्स्ट एज सुन एज पॉसिबल। करना क्या है बस बेसिकली, एक इंट एन ले लो, इंट एन इक्वल्स टू एस डॉट साइज वेक्टर ऑफ इंट ऑफ लाइक error of n comma 0 सारे 0 है समझो इनिशियली, देन आई विल कीप द फ्रीक्वेंसी मैप same vector of int frequency of 26 comma 0, and then I will start from for int I equals to 0, I smaller than I plus plus, and basically क्या करना है मेरे को, फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी इसकी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एस का आई क्या है, माइनस ए प्लस प्लस, सिंपली फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। फ्रीक्वेंसी बढ़ने के बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा, ए आर आर का जो करंट है विल बी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ एस का आई माइनस ए। ठीक है, और मेरे को हर बार मैक्सिमम में निकालना है, तो इंट maxi will be equals to initially 0, then we will like हल्लू हल्लू बढ़ाएंगे फिर maxi, so maxi will be equals to max, so basically we are every time we are updating the frequency, so error का I comma maxi, and then we will have max frequency। अब मेरे को चाहिए string answer will be empty string initially, then I will go to the each वो जो भी है, वो जिसको भी जो भी बोलते हो तुम लोग, यहाँ तक जाऊंगा, ओके एन तक जाऊंगा, और मैं क्या करना सिंपली इफ ए आर का आई इक्वल्स टू होता है मैक्सी उस जगह पे, दैट विल बी आंसर डॉट पुश बैक, और आंसर प्लस इक्वल्स टू एस का आई, वो वाला आई प्लस को रिटर्न आंसर। ये वर्क तो होना मांगता है।
होना तो देखो मांगता है एंड होगा भी। मांगता है तो होगा भी, समझ रहे हो ना तुम। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ये एन मतलब ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी, एंड ओ ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। आई थिंक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैन बी ऑप्टिमाइज्ड, बट आई डोंट गिव अ फक अबाउट इट राइट नाउ। लेट्स गो टू द थर्ड प्रॉब्लम। Maximum number of operation with same score too. Okay, you are given an array of integer called nums. Perform operation nums at least two elements, contain at least two elements. Choose first two elements nums and delete them. Choose last two elements and delete them. Just choose first and last element of nums and delete them. The score of the operation is sum of deleted element. Your task is to find the maximum number of operation that you can perform such that all operation have same score. M score. Return the maximum number of operation possible that satisfy the condition mentioned. Let us go and try. It is 200, 2000 only, 100 only. So this gives a hint about DP kind of stuff. So basically, what are the all options we have? We can delete first two, we can delete last two, we can delete first and last. So initially, if you think about it very logically, so basically, if we take the options we have the options. What are the options we have? We have first FIRST, first two elements. Then we have last two elements. Then we have what FIRST होता है ना, RIST नहीं, FIRST, first and last element. तो बेसिकली एक कर सकता हूँ मैं तीनों में से, पहले दो उड़ा दो, या फिर लास्ट दो उड़ा दो, या फिर फर्स्ट एंड लास्ट उड़ा दो। हम्म According to that, I have to play the game. Suppose this is 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, and if I is standing here, J is standing here, I can do something like इन दोनों को प्लस कर दो, इन दोनों को प्लस कर दो, एंड आई को इधर लेके आओ। एक तो ये है, तो एक क्या होगा, तो क्या चाहिए होगा, मैक्सिमम ऑपरेशन चाहिए अगर मैंने। सो बेसिकली क्या ही, तीन ही तो ऑप्शन है, इन दोनों का सम क्या आता है, पांच आता है। दूसरा ऑप्शन क्या होगा, इन दोनों का सम चार और तीन, चार और तीन होता है सात में भी, और तीन और चार वही सात। सो बेसिकली ये तीन मेरे पास ऑप्शन है जो सम होनी चाहिए। अब इन तीनों को ऑप्शन को ट्राई कर दो, सॉल्व वाला फंक्शन कॉल कर दो इन तीनों के लिए। जैसे कि पहले होगा पांच, तो पांच होगा तो पांच के लिए डीपी कॉल होगा। आईजे पे मैं खड़ा हूंगा, मेरे पास होगा पांच, अगर मैंने पांच किया इसका मतलब मेरा आई अभी के लिए यहाँ खड़ा हूंगा। एंड अगेन आई विल चेक कि भाई इन दोनों का सम पांच आता है नहीं, या फिर इन दोनों का सम पांच आता है, हाँ आता है, देन आई कैन चूज दैट ऑपरेशन। या फिर मैं ऐसे भी सोच सकता हूँ कि यार इन दोनों का भी सम आता होता, तो दैट टेक लाइक टू टेक दैट ऑपरेशन टू, एंड सारों को देख के मैं मैक्सिमम आंसर रिटर्न कर दूंगा। क्योंकि तो तीन बार सॉल्व लिख सकता हूँ मैं, एक ही सॉल्व लिखूंगा, एक बार सॉल्व लिखूंगा और इसको तीन बार कर दूंगा, जस्ट लाइक फॉर फाइव, फॉर सेवन एंड फॉर सेवन दिस, एंड आई विल हैव द आंसर at the end of the day, I guess so. Let us try to run our brute force solution. If it is working, then it is working. So basically, I will first try to solve. Okay. So basically, solve will return maximum number of
operations possible that satisfy the condition mentioned above. ठीक है. So basically, initially let's suppose I am trying starting with 0. We will tweak in it. So int n equals to nums dot size. Initially we are starting with and j will be at nums of chicken. Then currently we are going with the sum of nums of I or nums of 0 plus nums of 1. तो बेसिकली इन दोनों का सम लिया है तो 1 लिया है तो मैं 2 से स्टार्ट कर दूंगा. सिंपल है. सिंपल है. इसमें क्या सीन है? बड़ी सीन नहीं है इसमें कुछ. ठीक है. नम्स पास कर दूंगा, एन पास कर दूंगा, बात खत्म. अब इधर आऊंगा मैं. सिंपल सी बात है. इंट एन सॉल्व. इंट आई कहाँ पे खड़ा है, इंट जे कहाँ पे खड़ा है, एंड इंट सम क्या है. सम तो एड्रेस अब दे दूंगा तो, या फिर सम को सम दे देंगे. देन या फिर इसको स्कोर बोल सकता हूँ मैं कि ये मेरा स्कोर है. एंड देन vector of int address of nums I will have, and then vector of address of int n is the size basically. n की जरूरत यहाँ पे एक्चुअली में है ही नहीं, या फिर है. I don't think so. Basically I have I and j. अब मैं दो I कब ले सकता हूँ? जब वो j से छोटा होगा. सिंपल है. हाँ, तो n की जरूरत है ही नहीं, तो डोंट पास इट. सिंपल सी बात. नाउ सबसे इम्पोर्टेंट, if I is smaller than or if I is greater than or equal to j, अगर दोनों एक जगह पे भी आ गए तो एक ही तो ऑपरेशन होगा, इसमें तो कुछ कर नहीं पाएगा, तो रिटर्न 0. वह इधर से तो कुछ पॉसिबल है नहीं. सिंपल सी बात है. नाउ ट्राई टू थिंक ऑफ इट. आई हैव थ्री ऑप्शंस. फर्स्ट ऑप्शन विल बी कि मैं करूंगा भाई सॉल्व. अब सबसे पहले तो देखना पड़ेगा फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा. फर्स्ट टू उठा लूं. फर्स्ट टू कैसे उठाऊंगा? फर्स्ट टू उठाने के लिए पहले देखना भी पड़ेगा कि आई प्लस वन शुड बी स्ट्रिक्टली स्मॉलर देन इक्वल टू जी. स्ट्रिक्टली स्मॉलर देन इक्वल टू जी, तभी तो मैं उसको ले सकता हूँ. एंड nums का I plus nums का I plus 1 should be equals to score. Then I can take this option, and that option will be, I will simply go to I plus 2, because I plus 1 and I plus 1 will be taken, and we will be at I plus 2 j, and then we will have a score as it is, because score तो कुछ change होगा नहीं. Score as it is and nums as it is. But मैंने अगर ये कर पा रहा हूँ तो इसका मतलब मैं एक प्लस कर पा रहा हूँ स्कोर में, तो ये एक प्लस होगा. सिंपल सी बात है. ये हुआ एक वाला ऑप्शन. फिर एक होगा ऑप्शन. अब देखूंगा मैं भाई j माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू आई. ठीक है. j माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू आई, एंड नम्स ऑफ j प्लस नम्स ऑफ j माइनस वन शुड बी इक्वल्स टू स्कोर. तभी तो मैं उसको लूंगा तो क्या होगा, वन प्लस सॉल्व. जैसे कि अभी आई तो जगह पे रहेगा, j माइनस टू पे खड़ा जाएगा, एंड स्कोर एज इट इज एंड नम्स एज इट इज. So basically, this is I am calling for option one. Option one is basically add first two element. This is I am calling for last two element, and there will be one more thing which is अब देखो I अगर इक्वल होता तो इक्वल तो नहीं है, इसका मतलब दो एलिमेंट है एटलीस्ट. तो इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली nums of I plus nums of j, if they both are equals to score, then I can simply one plus solve. आई प्लस वन जाना पड़ेगा अभी, और जे माइनस वन करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने लास्ट का एक उठाया, फर्स्ट का एक उठाया, एंड देन स्कोर एज इट इज. तो स्पेलिंग हट दिया हूँ. स्कोर एज इट इज, नम्स एज इट इज. सिंपल. अभी इन दोनों को मैं स्टोर करना पड़ेगा मेरे को, या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ. इन तो तीनों से क्या होगा, इन दोनों का मैक्स चाहिए ना मेरे को. तो आंसर विल बी इनिशियली जीरो. int answer will be initially 0, and simply आंसर विल बी मैक्स ऑफ आंसर कॉमा 1 प्लस जो भी इसका आंसर आएगा वो. सिंपल आया. सेम एज इट इज गोज हियर. my answer will be max of answer comma जो इधर से आएगा वो. same goes here. answer will be max of answer comma जो इधर से आएगा वो, and then return answer, because we want maximum number of that score should be equal, so return answer. now we are calling heat here for like मैंने अगर एक से स्टार्ट किया तो int ऑप्शन ए ले लूंगा मैं, या फिर फर्स्ट बोलता हूँ इसको FIRST फर्स्ट, देन सेकंड, एंड देन इसको बोलूंगा मैं लास्ट टू,
देन इसको बोलूंगा मैं फर्स्ट लास्ट। अगर मैं यहाँ पे तो मैं जीरो लास्ट टू ले रहा हूँ तो मैं जीरो पे हूँ, और आई माइनस वन इधर थे, आई माइनस टू लूंगा और आई माइनस थ्री पे चलाऊंगा, और ये प्लस कर दूंगा मैं एन माइनस वन और एन माइनस टू को। देन यहाँ पे होगा फर्स्ट एंड लास्ट, सो एन माइनस वन एंड जीरो, सही है, एंड आई विल स्टार्ट फ्रॉम वन एंड एन माइनस टू बेसिकली, एंड देन after solving this I will return max of FIR first, last, and FIRST first, last. And let us try to run this. ये दो आया, तीन आना चाहिए था, हक दिया है इधर ही, इधर दो आना चाहिए था, एक आया, तो कैसे? क्या गलत लिख रहा हूँ, देखते हैं जरा। स्कोर भी तो सही है, जीरो फर्स्ट टू ले लिया, लास्ट टू क्या हुआ? माइनस थ्री पे खड़ा होगा, अगर मैंने दो ले ली तो उड़ गया। ऐसे ही होगा, जीरो एंड आई माइनस एन माइनस वन, वो भी ओके, एंड में जीरो ले लिया तो वन पे खड़ा होऊंगा, और मैंने ठीक ही तो किया है। At last two element. दोनों एक जगह खड़ा तो कुछ कर ही ना पाऊंगा, सिंपल सी तो बात है इसमें। हाँ, लाइक ये तो मैंने यहाँ तो प्लस वन करना पड़ेगा, ये भी तो खुद एक एक प्लस देगा मेरे को लाके, समझ रहे हो? तो सिंपली इसमें भी प्लस वन करना पड़ेगा। फक मैं क्या पागल हूँ मैं? प्लस वन सिंपल। दिस विल एक्चुअली क्यों किया मैंने प्लस वन? बिकॉज ये जब मैं ले रहा हूँ तो इसका मतलब मैं एक ऑपरेशन कर चुका हूँ, समझ रहे हो? सो दैट इज वाई इज प्लस वन। ठीक है, सो दिस इज गुड, दिस इज गुड एक्चुअली। हमें अपना क्या करना पड़ेगा, अभी मेमोराइज करना पड़ेगा। अब देखो चेंजिंग फैक्टर क्या है, आई और जे चेंज हो रहा है और स्कोर चेंज हो रहा है, तो स्कोर मैक्सिमम क्या बन सकता है मेरा? स्कोर को मेमोराइज करना पॉसिबल सा हो जा रहा है भाई। स्कोर को क्यों मेमोराइज करना है ना भाई, सिंपली इसको ही मेमोराइज कर दे, आई एंड जे को। आई एंड जे के लिए डीपी बना, तीन अलग अलग डीपी बनेंगे। हाँ भाई, तीन अलग अलग डीपी बनेंगे तो तीन बार अलग चलेगा, हाँ। डीपी वन इसको क्रॉस कर देंगे, डीपी टू इसको, डीपी थ्री इसको, सिंपल है। वेक्टर ऑफ डीपी वन क्या होगा बेसिकली, एन प्लस वन कॉमा वेक्टर ऑफ इंट एन, एन प्लस वन और एन प्लस वन और माइनस वन, सारे माइनस वन होंगे इसके लिए भी। और डीपी वन डीपी टू डीपी थ्री बनेगा, डीपी टू एंड डीपी थ्री, बेसिकली फॉर दैट थ्री ऑप्शंस we have three DPs. Now we will pass DP1 here, DP2 here, DP3 here,
मैं सारे -1 आई एंड जे तो इतने जा सकते तो -1 जी की कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। देन आई हैव टू पास हियर वेक्टर ऑफ एंड एड्रेस ऑफ डीपी। अगर ये ऑलरेडी डीपी ने सॉल्व करके रखा है, इफ डीपी ऑफ आई कॉमा जे not equals to -100 dp of I and G. Simple and store the answer dp of I comma J sorry will be equal to answer. मैंने कर दिया है तीनों के लिए डीपी पास कर दी, इसके अंदर भी डीपी पास करनी पड़ेगी ना हर बार। डीपी पास कर दो इधर भी, जीपी जीपी I guess so this will work for us fine. Should submit and it should get accepted. Should 100% yes. So time complexity is basically 3 into 3 into n into m. So 3 बार अपन ये कर रहे हैं तो होगी बेसिकली, और आई इंटू जे चलेगा तो ये डीपी की वजह से चलेगा। अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ जी इंटू ये कर रहा हूँ एन इंटू एन। सो बेसिकली एन स्क्वायर जी इंटू एन स्क्वायर विच approximately comes big of parallel big of n square, and space complexity will be simply big of same space complexity same we can do। चलो ये तो अपन ने सॉल्व कर लिए तीनों के तीनों। इसका कोई ऑप्टिमल सोल्यूशन भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट आई टू सिंपली थिंक विद दिस लॉजिक कि भाई स्टार्ट के एक बार ये ऑप्शन ट्राई करो, एक बार ये ऑप्शन ट्राई करो, एक बार ये ऑप्शन ट्राई करो, तीनों को साथ ट्राई करके जो मिलेगा दैट्स इट। सिंपल है ना। अगर मैं अगर मैं इनको जीरो सारों को मतलब सेम जगह से कॉल करता, स्कोर चेंज करके हर जगह पे सेम, हर जगह पे अलग इससे कॉल करता, समझो मैं क्या बोल रहा था। देखो 0 n-1 मेरे को देखना है चलता है कि 0 एंड सेम ही जगह पे कॉल करूंगा, n-1 सारे के सारे अलग अलग है। सिंपल है अभी के लिए, एंड स्कोर में कोई चेक करना है जो भी है वक्त चलेगी कोई दिक्कत नहीं है। 1 अभी प्लस करना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो भी प्लस करके आ जाएगा उधर से। नाउ दिस शुड वर्क आई गेस क्या है वर्क ही होगा, सिंपली वर्क होगा ये भी 100%। Yes, 100% it will get accepted, I know. So that can be one improvement. What else I can do? Do I actually need to, ये क्या ही बनेगा मैक्स 1000 बन जाएगा ना। बेसिकली हर डीपी में 3 स्टेट, अगर ये डीपी बनाए मैंने 3 डीपी बनाए बेसिकली, 3 डीपी की जगह मैं 2000 into 2000 into नहीं 1000 नहीं बना सकता, तो 2000 into 3 डीपी बनाना will be more feasible। या फिर ऐसे भी कर सकता हूँ। चलो भाई ये भी मेरे को सही लग रहा है सोल्यूशन, सो दैट्स इट। 3 के लिए अलग कॉल कर दो, तीनों के लिए देखो पहले ऑप्शन के साथ दूसरे ऑप्शन के थर्ड ऑप्शन। ये रिकर्सिव डीपी है, इसका इटरेटिव वर्जन आप ढूंढ लेना दोस्तों, इसको भी लिखने में इंटरेस्ट इटरेटिव लिख लो भाई। चलो सो अभी अपन नेक्स्ट वाला फोर्थ वाला पढ़ते हैं सवाल। मैक्सिमम consecutive elements in an array after modification। You are given a zero zero indexed array nums consisting of positive integers। Positive integers we have initially you can increase the value of any element in the array by at most 1। अच्छा तो consisting of positive integer initially you can increase value of any element in an array by at most 1, एक से बढ़ा सकते हो। After that you need to select one or more element from the final array such that
those elements are consecutive. What the fuck? After that, you need to select one or more elements from the final array such that those elements are consecutive when sorted in increasing order. For example, element 3, 4, 5 are consecutive while element 3, 4, 6 and 1, 1, 2, 3 are not. 3, 4, 6 is not consecutive. Okay. What is the maximum number of element that you can select? Yeah. Initially, you can increase the value of any element in the array at most. अच्छा, you can increase the value of any element in the array by at most one. एक से ही किसी की भी वैल्यू तो बढ़ा सकता है. किसी की भी वैल्यू तो एक से बढ़ा सकता है. देन एक से मैं बढ़ा सकता हूँ किसी की भी वैल्यू. तो अगर एक तीन मेरे पास होगा तो मैं और एक को लेता और उसको दो बना के एक. I don't find any fucking solution for this kind of situation. हार्ड में पता नहीं क्यों गिव अप ही कर देता हूँ. रैंकिंग रैंकिंग अच्छे से दे दे भाई. 1300 है, ठीक है. 1300 ठीक है, मतलब रॉन्ग एक भी नहीं किया, वो अच्छा लगा मेरे को. रॉन्ग एक भी नहीं है दोस्तों. दैट्स फील्स गुड जब आप कुछ रॉन्ग नहीं करते. जेन्युइनली थर्ड क्वेश्चन इज वेरी स्टैंडर्ड डीपी. सिक्स पे ही अटक जा रहा हूँ, थर्ड में कर रहा हूँ मैं. और अब सॉल्व करने की पावर ही नहीं रहती दोस्तों यार. अब सॉल्व करने में इंटरेस्ट ही नहीं आता. चलो, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद मी. भाई लाइक कर देना दोस्तों, प्लीज. प्लीज लाइक कर देना. लाइक करने लड़कियों को लाइक करने से अच्छा है लड़कों को लाइक करें. ये तो मैं गलत गे शिट कर दे रहा हूँ भाई. मैंने गो हियर. ओह फक. 3 बंदेज आर वाचिंग बट ओनली वन लाइक करने से. व्हाई व्हाई नॉट मोर लाइक्स. लाइक करो यार. प्लीज लाइक एवरीवन, प्लीज लाइक. चलो, गुड नाइट for the day, and we will meet again tomorrow with the day 86. Okay, bye bye.